Hello bachon, how are you guys? Myself Lohit Jindal and I welcome you all in our new series in more question of the day. उसका already काफ़ी questions हम कर चुके हैं. So let me just introduce myself. I have done my BTech from IIT Bombay and so far I have been teaching for Maths Olympiad and JEE for the past 8+ years. So I have mentored and taught more than 5,000 plus students and so many of the students have got very good ranks and selections. Okay, I'm not going to go into it again and again in every video. So that's it about me. So guys, आज हम अगेन क्या करने वाले हैं, इनमो क्वेश्चन ऑफ द डे के अंदर हम एक क्वेश्चन से डील करेंगे, राइट, ऑफ एन इनमो लेवल प्रॉब्लम. ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको, वो उसके ऊपर आते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग आई लाइक टू टेल यू गाइज फॉर द पीपल हु आर वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके, वेदांत ओलंपियाड स्कूल के चैनल पे, लाइक वी आर already going through the course of IOQM camp. Okay, we are running an IOQM camp. If you guys want to be part of this camp, in which we are covering preparation of basically IOQM and INMO both. 2 sessions are for INMO, 3 sessions for IOQM, and there are 2 tests in a week, right, on the new pattern. सबसे important बात है बच्चों, आपके लिए new pattern पे test हो रहे हैं, with which you can get a good practice before going into the real exam, right? So this is the link of the Google form. You can visit this link and fill in the form if you are not already enrolled in our IOQM camp. Okay. All right. So बच्चों start करते हैं आज का question. Let's see the question of the day. Right. This is the question. Let's understand this. So थोड़ा complex diagram बनता है इसका. So let's understand कि कैसे diagram बनेगा. So let 2 fixed circles O1 R1. इसका मतलब क्या है? Center is O1 and the radius of the circle is R1. And there is another circle with radius O2, center O2 and radius R2 be given in a plane. तो 2 fixed circles हैं. Suppose O1 and O2 intersect at a point M and R2 is greater than R1. Okay, they're not actually intersecting at a point M. So basically क्या हो रहा है, पढ़ते हैं इसको आगे. Consider a point A lying on the circle such that the 3 points O1, O2, A are non-collinear. ठीक है, तो centers के जो O1, O2 दो centers को join करने वाला लाइन है, A उसी की और लाइन में नहीं है, right? From A, draw the tangents AB and AC to the circle O1, right? तो from the A आपने 2 tangents draw कर दिए, okay? So एक काम करते हैं, मैं I'll show you the diagram that we have to draw, right? So that you get a better idea कि कैसे draw करना है और क्या मतलब है, क्या क्या दिया हुआ है. Because it will take some time to draw the diagram in real time. थोड़ा complex बनेगा तो अच्छे से नहीं बन पाएगा, right? So I've made the diagram beforehand. हमने बनाया हुआ पहले से है हमारे पास डायग्राम. सो आई विल बी शोइंग यू दैट डायग्राम, राइट. बट लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन फर्स्ट. ए पॉइंट से आप 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करो, ए बी एंड ए सी. नाउ लाइंस एम बी एंड एम सी इंटरसेक्ट अगेन द सर्कल ओ टू एट ई एंड एफ. सो बच्चे 2 सर्कल्स एक पॉइंट पे कैसे इंटरसेक्ट हो सकते हैं? इफ दे आर टचिंग ईच अदर. ओके, सो दैट इज द रीजन हियर, इस तरह से लिखा हुआ है. सो लेट्स अंडरस्टैंड. लेट मी शो यू द डायग्राम गाइस. ठीक है, आई गेस बेटर रहेगा उस तरह से. सो दैट इज द डायग्राम. लेट मी शो यू क्या मतलब कैसे किस ऑर्डर में बनेगा ये डायग्राम. सबसे पहले आप 2 सर्कल्स बनाओगे विद सेंटर्स O1 एंड O2. दिस इज O2 एंड दिस इज O1, राइट. सो दोनों सर्कल्स टच कर रहे हैं एट पॉइंट M एज शोन. ठीक है, देन व्हाट यू आर सेइंग इज यू आर टेकिंग अ पॉइंट A ऑन द सर्कल O2, राइट. उसके ऊपर आपने एक पॉइंट लिया, हियर इज द पॉइंट A. वहां से आपने क्या किया, यू हैव ड्रॉन 2 टेंजेंट्स AB एंड AC. सबसे पहला स्टेप ये हो गया. सो आपने टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए, B एंड C आर द पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज. देन अब आप आगे क्या कर रहे हो, the lines MB and MC intersect again the circle O2 at E and F. Okay, so C और M, ये दो, M तो point of contact था ना दोनों का, M और C को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रॉ किया आपने which go on to intersect the circle O2 at F, and BM को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है that goes on to intersect the circle again at E point. This is E and F. तो वहां पे आपको इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो, right? What next? Then what we are doing is the point of intersection of EF, if इस EF लाइन को E और F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे थे, अब उनको ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने, है ना. दैट इज इंटरसेक्टिंग विद द टेंजेंट एट ए पे जो टेंजेंट आपने ड्रॉ की वो उसको जाके डी पे पॉइंट पे डी पे इंटरसेक्ट करती है. ठीक है, डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है. सो व्हाट वी हैव टू प्रूव फर्दर इज वी हैव टू प्रूव, बिकॉज ये ए पॉइंट वेरिएबल है. देखो स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में ये ए पॉइंट इस सर्कल के ऊपर कहीं पे भी हो सकता है, बस O1 O2 को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, दैट्स इट. तो सर्कल O2 के ऊपर ये पॉइंट ए कहीं पे भी आप लोगे
एवरी टाइम यू विल डू दिस प्रोसेस, दो टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से टेंजेंट्स वाले पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज को ज्वाइन करके हर बार नए ई और एफ आएंगे, एंड ई और एफ का हमेशा कोई ई और एफ का इंटरसेक्शन कुछ होगा ए पे टेंजेंट के साथ, दैट पॉइंट इज गोइंग टू बी डी. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अब अगर विजुलाइज करोगे, अगर ये ए पॉइंट मूव करेगा सर्कल के ऊपर, सो विल द पॉइंट डी मूव, राइट, डी पॉइंट भी मूव करेगा. सो द क्वेश्चन इन दिस थिंग इज व्हाट वी हैव टू प्रूव इज दैट द डी पॉइंट हमने प्रूव करना है कि मूव्स ऑन अ फिक्स्ड लाइन, वो एक फिक्स्ड लाइन के ऊपर मूव करता है. सो ऑब्वियसली वी हैव टू फाइंड व्हिच फिक्स्ड लाइन इट्स मूविंग ऑन. ठीक है, ऑलराइट. तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है. सो अब सोचते हैं कि क्या करेंगे. ठीक है, सो व्हाट आई नीड इज आई विल बी ड्राइंग नीडिंग दिस डायग्राम अ बिट लार्जर, तो थोड़ा बड़े साइज में बनाया हुआ है मैंने, तो मैं वहां पे आपको बताता हूं क्या क्या करना है इसके अंदर, राइट. ऑलराइट, सो दिस इज द डायग्राम गाइज. सो गाइज हमने एडिशनल क्या किया, बस ए और एम को ज्वाइन किया है, एफ ए एफ एम, वो तो एफ ए को ज्वाइन कर दिया, राइट, दैट्स इट. सो अभी के लिए आप ये भूल जाओगे डी पॉइंट इज डॉटेड लाइन के ऊपर है, जस्ट निग्लेक्ट दिस दैट डी पॉइंट इज नॉट लाइंग ऑन द लाइन, हमें नहीं पता किसके ऊपर लाई करता है, राइट. विल नॉट बी इवन यूजिंग दैट डायरेक्टली एज सच. तो अब देखो गाइज, दिस डॉटेड लाइन, जो वर्टिकल डॉटेड लाइन बना हुआ है, राइट, लेट्स से दिस पॉइंट इज एक्स एंड दिस पॉइंट इज वाई. तो जो ये डॉटेड लाइन है दैट इज द कॉमन टेंजेंट ऑफ द टू सर्कल्स एट द पॉइंट एम, वो एट पॉइंट, इस पॉइंट एम के थ्रू जा रहा है, राइट. सो गाइस अब एक चीज ध्यान से सोचो, कैन यू से AC is also a tangent, right? This dotted line is also a tangent to both the circles. So consider this point guys, जो dotted point, dotted line और AC line जहां पे intersect करते हैं, right? मैं आपको थोड़ा आइडिया बताता हूँ. Let's say that point is P. तो आप देख सकते हो क्या, can I say that from the P point I'm making two tangents PC and PM, right? PC and PM are the two tangents. और हमें पता है if you are drawing two tangents from an external point to a circle, और उनको ज्वाइन करके कॉर्ड भी बना देते हो, देन दीज टू एंगल्स मस्ट बी इक्वल. ओके, आई एम मार्किंग दोज एंगल्स, दिस एंड दिस. सो लेट मी राइट विच टू एंगल्स विल बी इक्वल. एंगल PCM विल बी इक्वल टू एंगल PMC, राइट. ये तो आप सबको पता है. अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो, एक और एक पॉइंट से आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए ऐसे, आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ रफ डायग्राम लाइक दिस. So this is the diagram that's made, right, like this. So ये दो एंगल्स जो कॉर्ड के साथ बनते हैं, ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं ना, बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, आई एम मेकिंग यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी. ओके, सो एंगल PCM इज इक्वल टू एंगल PMC. देन फर्दर जो एंगल PMC है, इट इज इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल FMX. दिस एंगल PMC is actually further equal to angle FMX, right? FMX के equal है. Now guys consider the first circle, जो O2 center वाला circle है, right? इसके लिए FM is a chord, right? And this XY line, जो dotted line है, that is a tangent. So wouldn't I write that angle FMX is further equal to angle FAM? Angle FAM. Why? The reason is alternate segment theorem. Right? Alternate segment theorem यही होता है कि एक सर्कल के अंदर एक कॉर्ड और एक टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है, राइट. इफ यू ड्रॉ अ कॉर्ड एंड एट सम वन एंड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इफ यू आर ड्रॉइंग अ टेंजेंट, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल होता है, the chord subtends the same angle in the alternate segment of the circle. So this angle FMX is going to be equal to angle FAM. So I'll mark this angle FAM, right? So finally इन दोनों से हमें क्या पता लग रहा है, that angle ACM, basically PCM is same as ACM. So मैं लिख देता हूँ angle PCM which is same as angle ACM is equal to angle FAM. So how is this thing going to help us? ठीक है, ACM is equal to FAM, right? And now consider one thing, that angle AFM, right? So angle AFM is common to two triangles. I'll write which two triangles. I can write triangle AFM. देखो
triangle AFM is similar to triangle CFA by AA criteria. Look at it carefully. दो एंगल्स हैं. एंगल AFM जो ये वाला एंगल F पे जो बन रहा है, okay, that angle is common, and angle ACF, okay, angle ACF is equal to FAM, right? So I can say triangle AFM is similar to CFA because two angles are equal. Now since two angles are equal, इससे अब मैं क्या लिख सकता हूं? Okay, I'll write AF और FA divided by FA के correspondingly क्या आएगा? FC आएगा, right, is equal to FM divided by FA, right, from similarity. Now अब इससे क्या मिलेगा मुझे? FA square which is equal to FM into FC, right? I've got a relation कि point F के लिए FA square will be equal to FM into FC, right? Which is interesting, guys. सोचो देखो ध्यान से. For the circle O1 with center O1, F is an external point. There's a secant, right? FMC is a secant. So by applying power of a point concept, ठीक है, क्या कहोगे आप? FM into FC is equal to power of point F to F, ऐसा बोल सकता हूं. That is equal to power of point F, right? तो उसको हम क्या लिखेंगे? मैं लिख देता हूं, is equal to power of point F with respect to O1, right? और वो क्या होता है? What is power of a point defined as? The distance from the center of the circle, उसका square minus radius का square. So which means it is going to be equal to FO1 square minus R1 square, right? Since FM into FC is defined as power of a point, तो वहां से हमारे पास आ गया FO1 square minus R1 square, right? But FM into FC was equal to FA square. So combining these two things, I can write that FA square is equal to FO1 square minus R1 square, right? So which I can rearrange to write it like this, that FO1 square minus FA square is equal to R1 square. So this relation is quite interesting. ठीक है, बताता हूं क्यों आपको. So देखो F पॉइंट से क्या आया, that हमारे पास एक रिलेशन क्या आया, that there is a point F such that FO1 square minus FA का square is equal to radius R1 का square आ रहा है, right? That's a constant. Right hand side is a constant, right? Radius fixed था, this thing is constant. So F is such a point so that उसका distance जो O1 से बनेगा उसका square minus जो A point से distance बनेगा उसका square, that is coming out to be constant always, right? So guys, symmetrically it is very much symmetric. A और F में कोई फर्क तो है नहीं ना. A से आपने C पे टेंजेंट ड्रॉ किया था, AB के लिए अभी टेंजेंट ड्रॉ किया तो उसके लिए भी सिमिलर वे में BM को ज्वाइन करके E पे जाके इंटरसेक्ट करता है. So very much similarly, similar to the process जैसे हमने अभी किया, right? Similarly, what you can prove is just like this. You will be able to prove that EO1 square minus EA square will be equal to R1 square also. आप ये भी प्रूव कर पाओगे exactly in a similar way. तो मतलब सिमिलर ही होगा तो आप लिख सकते हो ऐसा. Exactly the same process जो हमने यहां से लेके यहां तक प्रोसेस किया ना, ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस यू विल डू इट अगेन. ठीक है, E और A को ज्वाइन करके आप कर सकते हो. बट सिंस E एंड F आर सिमेट्रिक तो जरूरत नहीं है एज सच. तो EO1 स्क्वायर माइनस EA स्क्वायर विल आल्सो बी इक्वल टू R1 स्क्वायर, राइट? आपके पास एक ये रिलेशन आ गया. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग बच्चों. सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज, देखो एक कॉन्सेप्ट रहता है दैट इफ यू हैव अ स्ट्रेट लाइन, लाइक दो पॉइंट्स आपके पास प्लेन के अंदर है ना, A एंड O1. Let's say A and O1 are 2 points and you have got such 2 points, E और F ऐसे 2 points आ रहे हैं, so that F का distance O1, F का O1 से distance उसका square minus F का A से distance उसका square is constant, and same चीज E के लिए भी हो रही है, right? So E O1 square minus E A square is also R1 square. So from these two things what you can say is कि E और F के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उस लाइन के ऊपर, है ना, जितने भी पॉइंट्स होंगे E और F के ऊपर, E F को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर,
For all those points, I can write this similar expression. Okay, I'll be able to write this similar expression. मुझे पता है जो D point है, that is some point on E and F, right? D कोई point है, उसके लिए भी further I'll be able to write this thing. For any point D, I'll be able to write dO1 square minus dA square will also be equal to R1 square. This is an important thing. ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ बता देता हूँ, आइडिया बता देता हूँ कि कैसे हो सकता है ये चीज ऑन द साइड. ओके, सो बच्चों मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ. लेट्स से देयर इज अ स्ट्रेट लाइन, यू हैव 2 पॉइंट्स A एंड B. तो आपके पास कोई एक पॉइंट C है, इस लाइन एक पॉइंट C है, राइट, एंड लेट्स से पॉइंट एक D भी है, राइट. सो व्हाट डू यू नो दैट CA स्क्वायर minus CB square, right, is constant, which is also equal to DA square minus DB square. Let's say आपको पता है, right? What does this tell you? Actually आपको यहाँ से ये पता लगता है that if you join A and B, right, it is perpendicular to this line. Okay, अभी मुझे नहीं पता perpendicular है कि नहीं, वो आ जाएगा. Because if you drop perpendiculars from B and A, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको भी हटा देते हैं. लेट्स से A से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दैट इज M, B से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दैट इज N, राइट. सो CA स्क्वायर को क्या लिखोगे आप, दैट विल बी CM स्क्वायर माइनस CN स्क्वायर, सॉरी CM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर क्या होगा, BN स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर, राइट. व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन? तो CM स्क्वायर माइनस BN स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर माइनस N, एक सेकेंड, थोड़ी सी चेंज करते हैं. सो CM स्क्वायर माइनस CN स्क्वायर यहां पे लिख लेते हैं. ओके, आई राइट इन 2 वेज. सो CM स्क्वायर माइनस CN स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर माइनस BN स्क्वायर. सो आप क्या देख सकते हो यहाँ पे, दैट BN एंड AM आर गोइंग टू बी कांस्टेंट. ये एक्सप्रेशन तो कांस्टेंट है ना हमेशा, दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट. एंड CM स्क्वायर माइनस CN स्क्वायर, ये मल्टीपल पॉइंट्स के लिए, 2 अलग अलग पॉइंट्स के लिए सही आ रहा है, राइट. सेम चीज D के लिए भी आएगी, C के लिए भी आ रही है और D के लिए भी आ रही है, राइट. सो उसके ऊपर इसका मतलब C और D को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये उन सब के लिए ट्रू होगा, that CM square minus CN square. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल मोस्टली 2 अलग अलग पॉइंट्स के लिए तो तभी आ पाएगा CM स्क्वायर माइनस CN स्क्वायर कांस्टेंट. सेम कैसे आ पाएगा, है ना, अगर या तो C और D सेम हो जाए, ठीक है. अदरवाइज CM स्क्वायर माइनस CN स्क्वायर कैन नेवर बी इक्वल फॉर 2 डिफरेंट पॉइंट्स. ओके, इट विल बी ओनली इक्वल फॉर 2 डिफरेंट पॉइंट्स इफ AB को ज्वाइन करने वाली लाइन वो लाइन के परपेंडिकुलर हो जाए, राइट. सो दैट मीन्स अगर वो परपेंडिकुलर हो गया, दैट M and N आर सेम, देन व्हाट विल एग्जैक्टली हैपन इज, इफ M and N आर सेम, ये एक्सप्रेशन तो कैंसिल ही हो जाएगा क्योंकि CM स्क्वायर माइनस CM स्क्वायर एंड दिस थिंग इज अ कांस्टेंट अगेन. सो ये एक्सप्रेशन AM स्क्वायर माइनस BN स्क्वायर इज कांस्टेंट इक्वल टू DA स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर. तो इस लाइन के, इन दोनों को C और D को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर आप कितने भी पॉइंट्स लोगे, वो सबके लिए ट्रू आएगा, वो डिफरेंस कांस्टेंट ही आता रहेगा, राइट. So that is why I am able to write this expression that dO1 square will symmetrically further from there will be equal to dO1 square minus dA square will also be equal to R1 square. Okay, so this is my equation number 1. I hope this thing is clear. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. लेकिन एक बात और सोचते हैं बच्चों, D का पावर, ठीक है, अगर मैं O2 स्क्वायर के साथ कंपेयर करता हूं, ठीक है ना, it is equal to R1 square. So dA square, because D is also lying on a tangent of A, right? A की tangent है, A के ऊपर tangent पे D लाया करता है. What I will be able to write according to the power of a point, that power of point D with respect to O2, power of point D with respect to O2 will be equal to dA square, which is but also equal to dO2 square minus R2 square, right?
सो डी ए स्क्वायर विल बी ऑल्सो बी इक्वल टू, टेंजेंट के लेंथ के स्क्वायर के इक्वल होता है, सो डी ए स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू डी ओ टू स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर, राइट, फ्रॉम 1 and 2. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आप डी ए को इक्वेट कर सकते हो, राइट, डी ए स्क्वायर को हटा सकते हो. सो व्हाट यू विल बी एबल टू राइट, डी ओ वन स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, डी ए स्क्वायर की वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 is equal to, so the second equation dA square is dO2 square minus R2 square, right? So both of these expressions are power of a point with respect to the circle O1 with respect to the circle O2 of the point D. This means what? This is basically written as, this is what power, okay, इसको ऐसे लिख देता हूँ, power of point D with respect to O1 is equal to power of point D with respect to O2. The two things are actually equal, right? ये मतलब बन गया कि D की पावर O1 के रिस्पेक्ट में, सर्कल O1 विद सेंटर O1 के रिस्पेक्ट में, एंड पावर ऑफ पॉइंट D विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल विद सेंटर O2 के रिस्पेक्ट में, दोनों इक्वल है ऑलवेज. दिस इज कमिंग आउट जनरलाइज फॉर्म हमने सॉल्व किया था. And if it is so, it means D must be lying on the radical axis of two circles basically. Because अगर दो circles touch कर रहे हैं, the common tangent is the radical axis. तो जो D point है, because power of a point equal होना दो circles के लिए, ठीक है, that is the definition itself of radical axis. That means मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, okay, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, therefore D must lie on the radical axis of the two circles, right? So D will be lying on the radical axis. और जो हमने प्रूव करा था कि एक फिक्स्ड लाइन होगी ना, radical axis is a straight line, फिक्स्ड लाइन, तो एक फिक्स्ड लाइन के ऊपर वो D पॉइंट आएगा हमेशा, या फिर D का लोकस जो बनेगा that will be the straight line which is the radical axis or the common tangent in this particular case for the two circles, ठीक है. So let's revise see the question जो हमने प्रूव करना था. We have to prove that D moves on a fixed line when A moves on the circle such that the 3 points are non-collinear. So this will always happen, as we have proven that D will be lying on the fixed line which is the radical axis, right? So guys, I hope this thing is clear. You guys learned something new. Power of a point का concept इसके अंदर बहुत beautifully use किया जा रहा है, ठीक है. So very interesting question solving which is being solved by using power of a point. I'll encourage you guys, आप सोचो इसके अलावा भी और कोई मेथड्स भी सोचो, ठीक है, ठीक है. इट विल हेल्प यू थिंक अबाउट डीपर थिंग्स, राइट. क्या क्या और चीज़ों के लॉजिक से भी हम आप ये चीज़ प्रूव कर सकते हो, है ना. मे बी आप ये चीज़ के बारे में भी सोचो कि ये चीज़ कैसे प्रूव होगी, है ना. जो हमने अगर दो पॉइंट्स के लिए आ रहा है ऐसा कुछ, सो कैन यू प्रूव कि हाँ उस दोनों पॉइंट्स के ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट के लिए मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ये भी प्रूव करने की कोशिश करना. ऑल्दो आई हैव टोल्ड यू द बेसिक कॉन्सेप्ट आइडिया कि कैसे आप जा सकते हो उसके लिए in this segment, तो आप ट्राई करके देखना लेकिन उसको, right? So that's it for this session guys. So to remind you again, this is the link for to register in our IOQM camp. ये वाला लिंक है, right? So vdnt.in/IOQMBcamp. Okay, so that's the link. So that's it guys, that's it for today's video. So I hope you guys must have learned something new. तो आपको मजा आया होगा, राइट, एंड आई होप मतलब आपको लगा हो कि आपने कुछ गेन किया आज नॉलेज वाइज, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर अस. ऑलराइट गाइस, सी यू इन द कैंप. बाय बाय, टेक केयर.